तो बच्चों, आज आज हम देखेंगे मोशन चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कौन से क्लास का? क्लास नाइन्थ का मोशन चैप्टर है। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं अच्छे से बता देता हूँ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड होल्ड करो, एक सेकेंड। तो चलो फिर से हम रिज्यूम करते हैं। देखो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पहले हम देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड बाय द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले तो क्वेश्चन में दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वेश्चन बाय द एक सेकेंड। देखो, पहला तो क्वेश्चन दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, मोशन of an object is a relative term from observation A. We can conclude that the object is in motion, but from observation B, we can conclude that the object is in rest. So when the number of observation increases, it leads to the increase in what? It leads to the increase in, let me draw perfectly. It leads to the increase in conclusion. Okay, increase in conclusion. Okay, so when the number of observation increases, then the number of conclusion also increases. Okay, so the motion of an object is a relative term. From observation A, we can conclude that the object is in motion, but from the observation B, we can conclude that the object is in rest. Okay, so let's take an example that observation A, let's take that it is a train. Okay, it is a train. Okay, it is a train and a passenger is sitting. Okay, two passengers are sitting. Okay, two passengers sitting and one is here, not in the train. Okay, so this is the observation A and this is the observation B. For this wait a second, for this passenger, this yellow color passenger, okay, this the observer A, will say that this passenger is in the rest, but this guy will tell that it is in the motion. So we can conclude that when the observer increases, we can lastly conclude this statement which I have given. When the number of observer increases, then the number of conclusion also increases. Okay, so therefore rest and motion both are relative term. Okay, understood. Okay, let's move to the second one. Okay. So the second question is, what is a reference point? I am going from the basic. Okay, what is a reference point? What do you mean by a reference point? Okay, so a reference point
is the origin where from where from where the movement of an object is calculated. Okay, it also describes that the object is in rest or motion. Okay, so reference point means, let me explain you what I have written. So reference point is the origin from where the movement of an object is calculated. It also describes whether the object is in the rest or not. Okay, so let me tell you, like this I have made. Okay, this is y and this is x. Okay, this is ordinate, and this is abscissa. And this is ordinate. Let me write this once again. This is ordinate, okay, and this point is the reference point 0. Okay, and hence we can say that it is origin. Okay, when the object is moving from here, like this it goes. Okay, so it is calculated that, let's take this as time and this as distance. Okay, so if the object is moving, we can say that at this point, that the point at A, we can conclude that the time is t. Okay, the time is t and the distance covered is d, and hence we can also conclude that the speed from this point, speed from this origin to this point, it is the slope which gives us the speed. Okay, this is the slope which gives us the speed. So hence, from the origin, from the reference point, when the object does a movement, I have written C, when the object does the movement, we can calculate its distance, its acceleration, its speed. It is based on the graph, which graph we are concluding. Okay, if it also describes that the object is in rest or motion. Okay, so if the thing is going like this, wait, let me draw it again. Okay, y x. If the object, let's take it distance, let's take it time, sorry, let's take it time. Okay, let's take its time, and this is the origin point. Okay, if the object is like this, okay, the graph is like this, what does it mean? It mean that the object is at rest. Is at rest. Okay, so if this concludes that object is at rest, because we are seeing from the origin point, it doesn't show any movement. In respective to time. Only the time is increasing. Like here the time is t1, here the time is t2, here the time is t3, but here the distance is only d1. Okay, so in the t1 also the distance covered is d1. In the t2 time also distance covered is d1. In t3 time also distance covered is d1. In t4 time also distance covered. So this gives this calculation we can do from the reference point, and it also tells that object is in the rest. Okay, understood? These whole things are understood. Okay, so this was the thing. Okay. Next we are going question number 3. Is it possible that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? So what does this question mean?
first we have to read this. Okay, is it possible, wait a second, is it possible, let me increase the thickness, uh, let me do it more. Is it possible that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? Okay. No. Okay, the answer is no. While, okay, why no? Let me answer this. It asking that is it possible that a train is in which you are sitting appears to move. Okay, तो ये हमें क्या बता रहा है? पहली चीज़ देखो, पहला चीज़ हमें ये क्या बता रहा है? ट्रेन जिसमें हम बैठे हैं, मान लो ये एक ट्रेन है, मान लो एक ट्रेन है जिसमें आप बैठे हो, जिसमें आप बैठे हो. ओके, इज इट पॉसिबल दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग appears to move while it is at rest? तो मान लो ये अगर रेस्ट में है, रेस्ट पूरा ट्रेन मान लो होल बॉडी रेस्ट में है, क्या आपको लगेगा ये मोशन में है? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा. अरे कैसे लगेगा, कैसे लगेगा? नहीं लगेगा. तो आंसर विल बी सिंपली नो. नो, because the whole surrounding of the train is at rest. The whole body and parts of the train is in rest. So the object which is contact to train or inside train will also feel the rest and motion when train is actually wait a second, when the train is actually doing wait a second, actually at rest and motion respectively. तो मैं इधर क्या बताना चाहता हूँ, देखो पहला चीज़ नो, because the whole surrounding of the train is at rest, the whole body and parts of the train is in the rest. Okay, so the object which is in the contact to train or inside the train will also feel the rest or the motion when the train is actually at rest and motion respectively. Okay, now you got. Wait a second. Okay, so this was the okay. Let's go to the fourth number question. Okay. Define the term distance. Let's wait. Distance is the speed into time, and it only shows the magnitude, not the direction in which at which the object moves. Okay, so distance is the speed into time,
let me clarify. Distance is equal to actually speed into time, s equal to vt. Okay, this is the thing. Okay, so distance is the speed into time, and it only shows the magnitude, not the direction at which the object moves. As it only shows the magnitude, not the direction, then it is a scalar quantity. Scalar quantity, what it is? Scalar quantity. तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ना इसमें मैग्नीट्यूड हमें दिखता है पर डायरेक्शन हमें पता नहीं चलता। क्यों ना हम ऐसे लिखते हैं इसको। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, ए से लेकर बी तक गया, 10 मीटर गया, तो हम जनरली इसको बताते हैं कि 10 मीटर गया। हम ये नहीं बताते 10 मीटर ईस्ट को गया, वो भी नॉर्थ के डिग्री के 98 पे। तो ये सब हम नहीं लिखते। ओके, पर ये हम डिस्प्लेसमेंट पे लिखते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट जाते हैं। ये पता चला। और एक चीज़ जो होता है ना, देखो, और एक चीज़ भी आप ध्यान में रख लो कि ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ये कभी भी नहीं हो सकता। पर पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पर नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। पता चला? चलो 5th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जल्दी 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 जल्दी। इज डिस्टेंस स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? देखो ये मैंने बता ही चुका है, ये मैंने पहले ही बता दिया यार। इसको आप क्या ही करोगे तुम। हाँ, तो पता ही चल गया ना। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि ना इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, ओनली मैग्नीट्यूड। पता चला? पता चला? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज डिफाइन द टर्म डिस्प्लेसमेंट। एक सेकेंड। ओके, डिफाइन द टर्म डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमें क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम। it tells magnitude with the direction in which at which the object moves। तो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमको क्या देता है? वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या ये बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या हम ये बोल सकते हैं? क्या हम ये भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस विथ डायरेक्शन? ये भी हम बोल सकते हैं। चलो एक चीज़ आप याद रख लो, एक चीज़ आप इधर कंफ्यूज हो रहे, मैं एस क्यों लिख रहा हूँ। देखो एक चीज़ आप याद रख लो। देखो एस जब मैं खाली लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसको सिर्फ एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर मैं जब ऐसे लिख रहा हूँ, एस के ऊपर ऐसे एरो मार्क मतलब क्या इधर मैं बता रहा हूँ? इधर मैं डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। और एरो मार्क मैंने किसके लिए दिया है? एरो मार्क मैंने किसके लिए दिया है? ये मैग्नीट्यूड तो है ही, पर इसके साथ डायरेक्शन भी है। तो एरो मार्क हमें डायरेक्शन बताता है। पता चला? अब ये वी में जहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? स्पीड है। स्पीड मतलब क्या है? इस पर बस सिर्फ मैग्नीट्यूड है। फिर मैं अगर जब वी के ऊपर ऐसे लिख रहा हूँ एरो मार्क, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अच्छा देखो, स्पीड स्केलर है, ये सब कैसे याद रखोगे? देखो एक शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। अभी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो स्पीड
कहाँ से स्टार्ट होता है, एस से स्टार्ट होता है, एस मतलब स्केलर, एस मतलब स्केलर। वैसे ही लिख दो वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी में वी आता है, वी मतलब वेक्टर। अरे मज़ा आया कि नहीं, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब पूछा जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, देखो इसका कैसे याद रखोगे, स्केलर है वेक्टर, देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम है कि नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी का वी है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ओके, वैसे ही आपको पूछा जाए, मान लो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में क्या आता है, स्पीड इनटू टाइम आता है कि नहीं, स्पीड इनटू टाइम आता है कि नहीं, तो स्पीड क्या है, एस है, एस मतलब क्या, स्केलर है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, स्केलर हुआ। वैसे ही मान लो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर को, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम हुआ कि नहीं, तो वेलोसिटी में v है, v मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। जी सर, जी सर, हो गया। चलो 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 चलो, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, मैं समझाना चाहता था आपको। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया, 6वां। अब हम जाते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन। इज़ डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमने अभी ही किया है यार, अभी किया है, थोड़ा सा बोर होने लग रहे होगे आप थोड़ा, देखो थोड़ा सा देख लो, एग्जाम में भी थोड़ा थोड़ा यहीं से आता है। इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तो मैंने अभी ही बताया था, बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वेलोसिटी में v आता है, मतलब क्या हो गया, वेक्टर हुआ, वेक्टर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक बा, ठीक है, ठीक है। अरे यार मैंने क्या ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, बेकार हो गया, बेकार हो गया। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा रुको गाइस, थोड़ा सा, कुछ तो टेक्निकल इशू है इसमें। ठीक है, अब ठीक है, पता चला, डिस्टेंस हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, पता चला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में। अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन, कंडीशन इज डिस्टेंस एंड द magnitude of the displacement is equal, देखो देखो, अंडर व्हाट कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं अंडर, ओके, ये पूछ रहा है अभी अंडर व्हाट कंडीशन तो इक्वल, जब डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस आर इक्वल इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। समझ रहे हो, देखो 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 देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कब, कब डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अंडर व्हाट कंडीशंस, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि, एक सेकेंड, ये इक्वल टू, ये कब होता है, क्या होता है, जब ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, देखो 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 देखो, जब ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, जब ग्राफ हमारा, मान लो ये फर्स्ट देख लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके, जब हमारा लाइन जब ऐसे होगा, जब हमारा लाइन ऐसे होगा, तो ये क्या है, क्या है, क्या है, रेस्ट है, रेस्ट है, ओके, रेस्ट है, तो उधर डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, इधर कांस्टेंट ही रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना, चेंज नहीं हुआ ना, ओके, तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा,
स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही मान लो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है, मान लो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है। ओके, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मतलब जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं, देखो एक सेकंड, हम ऐसे भी देखो ये लाइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी ये रेस्ट में ही है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी कांस्टेंट हो गया। ओके, स्पीड यहाँ पे भी कांस्टेंट हो गया। तो जब मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक टोटली कुछ गया ही नहीं, मतलब उसका कुछ ओरिजिन में ही है, वो जीरो में ही है। ओके, अभी तक वो गया ही नहीं, तो क्या होगा, तभी उस टाइम में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि ना अभी तक वो बॉडी मूव ही नहीं किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन के वैसे आप क्या समझते हो, देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये है, ये dt ग्राफ है, मान लो ऐसे जा रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी उतना है, यहाँ पे भी उतना है। तो थीटा अगर आप ड्रॉ करोगे तो थीटा चेंज नहीं होगा, तो थीटा रिमेंस कांस्टेंट। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स द इक्वल रेट ऑफ डिस्टेंस covered in equal rate of time is known as uniform motion। वैसे ही मैं बोलूँ अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वैसे ही मैंने बोला अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, द unequal rate of distance covered in equal rate of time is known as non-uniform motion। देखो ये क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो पहला अब देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब, देखो थोड़ा सा डुप्लीकेट इसका बना देता हूँ, थोड़ा सा रुको इसका डुप्लीकेट में बनाता हूँ। डुप्लीकेट देखो यूनिफॉर्म मोशन, देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, जो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस है, मतलब मान लो डिस्टेंस d1 ओके, d1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लो d1 जब 0 पे था, टाइम तभी क्या 1 सेकेंड हुआ था। ओके, जब d2 हमारा क्या हुआ 1 हुआ, टाइम t2 क्या हुआ 2 सेकेंड्स हुआ, 2 सेकेंड्स हुआ कि नहीं। जब हमारा टाइम था मान लो ऐसे रब करके इसको 0 ही लिखने देता हूँ, 0 सेकेंड्स पे था। ओके, टाइम जब 0 सेकेंड्स पे था तो डी भी 0 सेकेंड पे था। जब डी 10 मीटर्स चला तभी t2 हमारा 2 सेकेंड्स हुआ। जब d2 हमारा कितना हुआ 3 सेकेंड्स हुआ। ओके, 3 सेकेंड्स हुआ, तब बोलो कितना होगा हमारा t2 कितना होगा 6 होगा कि नहीं। मतलब देखो ऐसे अगर काटोगे 3 से 1 गया तो ये 6 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये कितना होगा 6 सेकेंड्स। वैसे ही मैं बोलूँ जब d2 जाएगा 4 मीटर्स, तभी t2 क्या होगा। जब d3 अगर जाएगा 4 मीटर तो t3 क्या होगा बोलो ना।
8 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो देख रहे हो इधर अगर मैं रेट ऑफ चेंज निकालूँ ना, मतलब स्पीड अगर निकालूँ ना, स्पीड कितना आ रहा है, स्पीड कितना है, डिस्टेंस बाय टाइम है, इधर काटो देखो कितना आ रहा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। इधर भी अगर निकालोगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। ओके, इधर भी अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं। तो अगर स्पीड इक्वल है 5.50 मीटर पर सेकेंड, 5.50 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये सब इक्वल है कि नहीं, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो आपको पता ही होगा यार, बोरिंग कर रहा हूँ मैं आपको। देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, देखो जब D1 1 में होगा तभी T2 3 सेकेंड्स में होगा। ठीक है, वैसे ही जब D2 हमारा 5 मीटर में गया ना, तो T2 मान लो 100 सेकेंड्स लगा। ओके, तो ये गलत है, देखो 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 देखो, और मैं बता रहा हूँ, देखो जब D3 कितना गया, 4 सेकेंड्स में गया ना, तभी T2 हमारा 31 सेकेंड्स में था। ओके, तो ये है, इसका अगर आप स्पीड निकालोगे, इसका स्पीड निकालोगे तो ऐसा कितना आ रहा है, 1/3 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना आ रहा है, 1/20 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना आ रहा है, 4/31 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 1/3 मीटर पर सेकेंड इज़ नॉट इक्वल टू 4/31 मीटर पर सेकेंड इज़ नॉट इक्वल टू 1/20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड अगर इतना आ रहा है, स्पीड अगर मान ली, ये सब स्पीड ही है, आ रहा है। डिस्टेंस बाय टाइम करोगे तो कितना आएगा, स्पीड ही आएगा ना, तो ये सब स्पीड है। स्पीड अगर अनइक्वल है तो क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक बा, समझेगी नहीं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, इतना तक मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ना ये फालतू का कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था, या फालतू नहीं है पर समझने वाली चीज़ था, जो कि आपको पता होगा। ओके, ये पता चल गया। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो इधर पूछ रहा है, एक एग्जाम्पल दे दो। देखो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन में हमने कर चुका है, देखो 10th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, गिव ए एग्जाम्पल इजी दो ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक एग्जाम्पल दो। देखो इसका हम क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका हम दे सकते हैं जिगजैग मूवमेंट, या फिर ब्राउनियन मूवमेंट दे सकते हैं। थोड़ा केमिस्ट्री में समझा रहा हूँ। देखो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जब भी पार्टिकल्स का मूवमेंट इधर से उधर होता है जिगजैग वे में, ऐसे कहीं पे भी जाता है, इन्हें अनइक्वल स्पीड, तो उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, तो ये ब्राउनियन मूवमेंट हमारे पार्टिकल्स में होता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। ओके, मैं आपको जब पढ़ाऊँगा, ओके, मैं अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में केमिस्ट्री के पार्ट में, जब मैं पढ़ाऊँगा तब समझ लेना। अब थोड़ा सा 3 न्यूमेरिक्स कर देते हैं। ओके, तो आज के लिए क्लियर करते हैं, कल मैं नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करूँगा। ओके, 3 न्यूमेरिक्स कर लेते हैं लास्ट को। पहला क्वेश्चन दिया है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट the distance covered and the displacement of minute hand of the clock from 9 am to 9:30 am। ओके, तो सोल्यूशन देखो, मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से लिख रहा हूँ, सोल्यूशन देखो, अच्छे से लिख रहा हूँ। देखो हमको क्या है बोला है, एक मिनट हैंड, एक क्लॉक में, देखो रुको सर्कल गलत बन गया। हाँ, AI से मतलब पूरा अच्छे से बन जाएगा ना सर्कल, ठीक बा। देखो अभी ठीक है, देखो इधर एक सर्कल बनाया। देखो इससे जो मिनट हैंड है ना, ये मिनट
मिनट हैंड। इसका लेंथ हमको बता रहा है 7 मीटर पर, मतलब सॉरी 7 सेंटीमीटर बता रहा है। ओके, तो इसका जो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड इसका किस में है, पहला चीज़ लिख रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ और डिस्टेंस बताओ जब ये 9 AM से 9:30 AM तक पहुंचा। देखो 9 AM में मिनट हैंड कहाँ पे होगा, मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 12 पे होगा। 12 पे देखो, ये मैं अगर 12 बना रहा हूँ, 12 1 2 3 4 5 4 5 6। ओके, एक सेकंड, गलत बना दिया थोड़ा सा। अरे यार थोड़ा सा टॉलरेट कर लो यार। ये अगर मान लो 12, तो ये 6, इधर 3, इधर 9, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 7 8 10 11। ठीक है, ये बोल रहा है जब 9 बजे मतलब मिनट हैंड हमारा 12 पे रहेगा। हमको आवर हैंड की कोई ज़रूरत नहीं है, आवर हैंड हमारा इधर रहेगा, पर आवर हैंड हमें इधर पूछा ही नहीं है, क्यों हम फालतू का टाइम वेस्ट करने जाए। ओके, अब पूछ रहा है यहाँ से जब यहाँ गया, यहाँ से यहाँ मतलब ये घूमते जब यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक, तो ये क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल का क्या पूछ रहा है, फर्स्ट हमको डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक गया, कैसे निकालोगे, ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे। पूरा सर्कल का आपको पता है पेरीमीटर कितना होता है 2πr, हैप का कितना होता है, हैप कर दो πr हो गया। ओके, पाई का वैल्यू आपको क्या पता है 22/7। आर का वैल्यू आपको कितना दिया था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये जो लेंथ कितना था 7 सेंटीमीटर था। 7 सेंटीमीटर ही इसका रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ओके, तो इधर 7 डालना, 7 से कट गया, तो 22 सेंटीमीटर इज आवर डिस्टेंस। तो हम इधर लिख सकते हैं हेंस 22 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस। ओके, अब पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने को ही डिस्टेंस करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक कितना था 7 था, यहाँ से यहाँ तक कितना था 7 था, तो 7 प्लस था कितना 14 हुआ। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 7 × 2 जो कि कितना होता है 14 सेंटीमीटर इज़ द डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और 2 ही क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एन एथलीट, पहले बोला है एन एथलीट completes a round of a circular track of diameter 200 meter in 20 second. Calculate सॉरी, कैलकुलेट का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन दिया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द displacement of the athlete at the end of 1 minute and 10 seconds। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो एथलीट कंप्लीट्स ए राउंड ऑफ ए सर्कल ट्रैक डायमीटर इतना। देखो एक सर्कल है जिसका डायमीटर पूरा कितना दिया है, डायमीटर पूरा दिया है अपना 200 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अगर 200 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाय 2 मतलब 200/2, तो 100 मीटर हो गया। ओके, तो टाइम इधर कितना दिया है 20 सेकंड्स में कवर किया है इसको। मतलब ये जो टोटल एक टोटल राउंड में जिसका डायमीटर था इतना, उसको कवर किया इसने टी कितने का 20 सेकंड में इसने कवर किया है। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट,
ओके, सो यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक आया। ओके, इसका हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना है। देखो एक सेकेंड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो डिस्टेंस ट्रैवल तो हमें पता चल गया ना, डिस्टेंस का हमें क्या पता है, डिस्टेंस ऑफ ए सर्कल मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r होगा कि नहीं, तो 2 × 22/7 इंटू कितना, रेडियस कितना आया हमारा 100। थोड़ा सा हमें इधर कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा रुको, स्प्लिट व्यू करता हूँ थोड़ा सा, कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत है हमको। देखो 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 देखो, कैलकुलेटर आ गया हमारे पास, 2 × 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100। ओके, तो कम से कम हमारा आ जाएगा इधर आंसर 628.557 मीटर। कितना आ गया यहीं से। ओके ठीक है ठीक है, कैलकुलेटर को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, चलो समझ आया। तो इतना आ जाएगा क्या हमारा डिस्टेंस, क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इधर पूछा है, डिस्प्लेसमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाएगा तो 0 आएगा आंसर, पर इधर एक कंडीशन दिया है, ऑफ द एथलीट एट द एंड ऑफ 1 मिनट 10 सेकेंड्स। ओके 1 मिनट 10 सेकेंड्स। अब दिमाग चकरा रहा होगा, अब दिमाग चकरा रहा होगा। देखो 1 मिनट 10 सेकेंड्स को हम इधर कैलकुलेट करते हैं। देखो 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 देखो, 1 राउंड को कवर करने के लिए उसने कितना सेकंड लिया, 20 सेकंड। अभी हमको टाइम के क्या दे रहा है, 1 मिनट 10 सेकंड, तो इसको कन्वर्ट कर देते सेकंड में। 1 मिनट को पहले क्या करते हैं, 60 के साथ इंटू करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा सेकंड्स में आ जाएगा। फिर इसको प्लस करते हैं सेकंड के साथ, तो कितना आ जाएगा 70 सेकंड्स, 70 सेकंड्स। ओके देखो 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 देखो, अगर 20 सेकंड में उसने एक राउंड कवर किया, एक राउंड कवर किया, ओके ओके, तो 20 + 20 + 20 ये कितना देगा, 60। 60 के साथ एक 10 जोड़ दो, तो कितना राउंड बराबरी करेगा, बराबरी करेगा 3 राउंड्स प्लस 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 एक हाफ राउंड के, हाफ राउंड के। ओके 3 और हाफ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 1/2, 3 1/2 राउंड्स वो क्लियर करेगा। ओके तो हमें क्या पता है, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट एट द एंड ऑफ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द। ओके इतना करने से अच्छा, इतना करने से अच्छा, आपको तो ये पता है ना, इसका यहाँ से यहाँ तक आके ही रुकेगा ना, लास्ट को तो यहीं पे आके रुकेगा ना, जहाँ पे भी स्टार्ट करेगा, तो यहीं से यहीं इसका निकाल दो ना। यहीं से कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 200, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 200। तो सिंपल ये सब नहीं करने की भी ज़रूरत है, ये सिर्फ नॉर्मल आंसर आएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 200 मीटर। देखो ये सब मैंने क्यों कराया, देखो पहली बात ये सब मैंने क्यों कराया, ये सब मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि ना आपको पता चले, यार ऐसे दिया है क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा आता है ना क्वेश्चन, मान लो दिया है 1 मिनट 10 सेकेंड्स में उसने कवर किया। ओके तो ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो उसको कन्वर्जन करने की भी ज़रूरत है। ओके ऐसा होता है, मैं समझा रहा था ये, ठीक है। ओके जस्ट एट द टर्निंग पॉइंट। देखो ये क्यों हुआ, देखो पहले तो हमें ये पता है ना, देखो कैसे हुआ, 3 राउंड उसने बोला था ना, देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, 3 राउंड तो बोला था ना उसने। देखो पहला राउंड देखो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ से गया टुचुक 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 टुचुक, यहाँ से गया 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 आके रहा, इधर रहा। डिस्प्लेसमेंट कितना, अभी भी 0 है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 है कि नहीं। फिर से उसने और एक राउंड लिया, कितना लिया, 3 राउंड्स के साथ उसने एक हाफ राउंड क्लियर किया। देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ,
3 राउंड, एक राउंड इधर क्लियर हुआ, एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना 0। सेकेंड राउंड आया, सेकेंड राउंड टुचुक 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 टुचुक, फिर से आके 0, फिर से 0 हुआ, सेकेंड में भी 0 हुआ, थर्ड में भी टुचुक 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 टुचुक, वहीं आके 0 हुआ, ये भी आके 0 हुआ। फिर उसने और एक लिया हैप मतलब टुचुक 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 टुचुक, आगे इधर रुक गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी निकालना है, यहाँ से जाके यहाँ तक कितना पता था 200, तो हो गया हमारा आंसर डिस्प्लेसमेंट 200। ठीक है कि नहीं? अभी मज़ा आया कि नहीं? अभी आया कि नहीं मज़ा? चलो 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 13 नंबर और हम और ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, आफ्टर studying the motion of a ball rolling on a straight line as shown in figure। देखो फिगर में बना देता हूँ, देखो फिगर में बना देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ए से लेकर बी तक यहाँ सी पॉइंट है, और सी और बी का इधर कितना बता रहा है अपना 2 मीटर। ओके, समझ आया? और ये टोटल है हमारा 10 मीटर। ओके, एज शोन इन द फिगर। फाइंड इट्स, फर्स्ट लिखा है फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस covered when it rolls from A to B then to C। ओके, यह इजीली निकल जाएगा यार। देखो पहले हमारा डिस्टेंस कैसे निकला। देखो एक बॉल रोलिंग होके जा रहा है, मतलब ऐसे रोलिंग होके पहले कहाँ गया बी तक गया। सो ए से बी तक कहाँ है 10 है। 10 देखो पहले में क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। देखो डिस्टेंस लिख भी रहा हूँ, देखो डिस्टेंस में लिख भी रहा हूँ। देखो डिस्टेंस इधर क्या, पहले बॉल ऐसे रोल होके गया कहाँ से, ए से बी तक। तो हमने क्या इधर कहा, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना था 10 था, तो 10 को जोड़ा। फिर यहाँ आया बी से वापस आया, देखो मैं अलग सा पेन में लिख रहा हूँ, बी से इधर वापस आ गया, बी से वापस आके सी पे आया। ओके, बी से वापस आके सी में रुका, मतलब फिर से क्या हुआ, बी से सी आया। तो हम क्या इधर लिख सकते हैं, -2 मीटर लिखेंगे कि नहीं, -2 मीटर लिखेंगे कि नहीं। ठीक है, टोटल कितना आया, इसको काटो तो 8 मीटर आया। ठीक है, 8 मीटर क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपल ही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से लेकर सी तक ही कहीं दूरी है, ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 8 मीटर। ओके, सॉरी मैंने, अरे यार क्या किया है मैंने, देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, ये तो हम पता ही नहीं है ना। तो बी से जब सी गया तो क्या हुआ, 2 मीटर बढ़ा, 2 मीटर इधर ऐड कर दो, डिस्टेंस हो जाएगा 12 मीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगा 12 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8 मीटर। अरे आया कि नहीं मज़ा, आया कि नहीं। ठीक है। सेकंड जाते हैं, सेकंड देखो क्या है, फाइनली कम्स बैक टू ए। अरे फाइनली कम्स बैक टू ए मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो पहली बात 10 × 2 कर दो, मतलब क्या 20 मीटर हो जाएगा बच्चों। 20 मीटर होगा कि नहीं, अरे हाँ होगा, 20 मीटर होगा। पर मैं अगर बोलूँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यार, 0 हो जाएगा कि नहीं। देखो ए से लेकर बी गया, अब बी से वापस आया ए तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर डिस्टेंस इधर 20 हो जाएगा। ठीक है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, बाय। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, कीप लर्निंग, बाय।